اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق جو ہے وہ سورہ بقرہ کا رکوع 29 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کی قسموں کو بیان فرمایا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خلا کا بھی بیان اس میں آیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ طلاق کے احکام جو ہیں ان کے احکام کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ملا جلا کے اس میں 4 احکام جو ہیں، 4 حکم کو بیان کیا گیا ہے۔ جو پچھلا رکوع تھا اس میں قسموں کا بیان تھا، اور قسم میں سے ایک قسم جو ایلا تھی اس کا بیان تھا، جس قسم کے پورا ہو جانے کے بعد طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اسی کے نسبت سے طلاق ہو جانے کے بعد عورت کو کیا وقت گزارنا پڑتا ہے، اس عدت کا بیان کیا گیا تھا۔ اس کو طلاق کی عدت کہا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ عورتوں کے حقوق کا بھی بیان کیا گیا تھا۔ اب اس رکوع کی جو شروعات ہے وہ طلاق سے ہوتی ہے۔ طلاق جو ہے وہ نکاح کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے جو خلا ہے وہ بھی نکاح کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ نکاح ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر عبادت اور معاہدہ اور کانٹریکٹ دونوں کے پہلو پائے جاتے ہیں۔ ایک معنی میں نکاح جو ہوتا ہے وہ کانٹریکٹ ہے، تو وہ نکاح وہ طلاق سے وہ کانٹریکٹ آپ کا ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے خلا سے بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ اس کے اندر عبادت کے بھی پہلو ہیں، اسی لیے ان میں کچھ شرائط کو جاری کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ نکاح جو ہے وہ صرف 2 فریق کے جمع ہو جانے سے نکاح نہیں ہوتا ہے۔ نکاح کے اندر گواہوں کی موجودگی ضروری ہوتی ہے۔ کسی اور معاہدے میں گواہوں کی موجودگی بہت ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو نکاح ہے اس میں کچھ حقوق جاری ہوتے ہیں، یعنی معاہدہ ہو جانے کے بعد جو 2 فریق ہیں، جو یعنی شوہر اور بیوی، ان کے حقوق جاری ہوتے ہیں، اور ان حقوق کے ادائیگی کے نہ ہونے کی صورت میں گناہ ہوتا ہے، اور معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھ کے طلاق کی صورت میں نتیجہ اس کا آتا ہے۔ اب جو طلاق ہے وہ طلاق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف اس لیے جائز قرار دیا ہے تاکہ آدمی جو نکاح کرتا ہے، یعنی 2 فریقین ہیں، ان کو اس بات کی سہولت میسر ہو کہ جب کبھی ان کے درمیان ناچاقی پیدا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، اور معاملہ جو ہے وہ کسی طور سے نہ سلجھے، تو ان کے پاس ایک آپشن ہو، یہ پاسبلٹی ہو کہ وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ ورنہ نکاح جو ہوتا ہے اس کو بنایا اس لیے گیا ہے تاکہ مرد اور عورت دونوں زندگی بھر اس رشتے کو نبھائیں، کیونکہ اس یہ رشتہ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں سارا گھر انوالو ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مرد عورت انوالو ہوتے ہیں، اور ان کے بچے بھی انوالو ہوتے ہیں، تو تربیت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو بذات خود نکاح تو باقی رکھنے کی چیز ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے جدا ہونا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی اس چیز کو آ، عطا فرمایا ہے تاکہ لوگ نکاح کے بعد بھی اگر الگ رہنا چاہیں تو الگ ہو سکتے ہیں۔ اور یہ اس چیز سے منع بھی فرمایا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز حلال چیزوں میں وہ طلاق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو سب سے ناپسندیدہ چیز قرار دیتے ہیں۔ اور طلاق کی جو احکام بیان کیے گئے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کبھی میاں اور بیوی کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو، سب سے پہلے ان کو آپس میں اس چیز کو سلجھانا چاہیے۔ اس مس انڈرسٹینڈنگ اگر ہو گئی ہے تو مس انڈرسٹینڈنگ کو ختم کرنا چاہیے، کوئی جو غلط فہمی ہے اس کو دور کرنا چاہیے، اور اگر اس کے باوجود بھی مسئلہ نہ حل ہو
تو एक दूसरे के घर वालों को जमा होकर के, यानी उन मियाँ और बीवी दोनों के घर वाले में से 2 लोग आएँ और आपस में बैठ के इस मसले को सुलझाएँ। फिर भी ना हो तो फिर तलाक की तरफ की नौबत आ जाती है और तलाक हो जाती है। उसी के अहकाम इस रुकू में बयान किए जाएँगे। तलाक जो है उसको कहा गया है कि तलाक 2 बार है। अत-तलाक़ु मर्रतान, तलाक 2 बार है। ये नहीं कहा गया कि तलाक 2 है। यानी तलाक को आपको जो तलाक सबसे ज़्यादा सही तरीक़ा है तलाक देने का, वो 2 बार है। यानी एक बार तलाक दिया जाए और फिर जब औरत की एक पीरियड गुज़र जाए औरत का, तो उसके बाद दूसरी पाकीज़गी की हालत में दूसरी तलाक दे दी जाए। और अगर एक ही तलाक दी जाए तो हदीसों में कहा गया है कि सबसे अहसन तरीक़ा वही है कि एक तलाक दे कर के औरत को छोड़ दिया जाए और उसके बाद उसकी इद्दत पूरी हो जाए और उसके साथ वो निकाह से बाहर निकल जाएगी। तो तलाक जो है वो 2 बार है। सबस यानी तलाक देने का सही तरीक़ा यही है कि 2 बार में तलाक दे कर के मामले को ख़त्म किया जाए। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर शौहर को ये लगे कि वो सुलह सफ़ाई के ज़रिए सुलह कर सकता है बीवी के साथ और उसकी नीयत सही हो, कायदे के मुताबिक अगर वो चाहे तो वो रोक सकता है। फ़इम्साकुम बिमारूफ़, तो वो कायदे के मुताबिक रोक लेना है, यानी वो रोक सकता है। और तसरीहुम बिइहसान, या खुश उसलूबी के साथ छोड़ देना है। यानी अगर उसको ये लगता है कि नहीं मामला सही नहीं हो सकता है, कोई सुलह और मुसालह से काम लेने के बावजूद भी मसला सही नहीं हो सकता है, तो उसको खुश उसलूबी के साथ छोड़ देना है। यानी इस छोड़ने की सूरत में कोई अपना कोई तकलीफ़ पहुँचाने का इरादा नहीं होना चाहिए, किसी तरह का बदला लेने का इरादा नहीं होना चाहिए और इसके अंदर तलख़ी से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि खुश उसलूबी के साथ इस चीज़ को अदा करके ख़त्म कर देना चाहिए। और अल्लाह ताला फरमाते हैं उसके साथ-साथ कि अगर कोई शख़्स ये चाहे कि अपनी बीवी को जो कुछ उसने दिया है, यानी जो महर की सूरत में उसने अदा किया है, उसको वापस ले ले, तो ये चीज़ हलाल नहीं है। ये दूसरा हुक्म है कि औरतों को जो कुछ भी दिया गया है, वो उनको उनके पास छोड़ देना चाहिए। शौहर को ये इजाज़त नहीं है, ये हलाल नहीं है कि जो महर उसने दी है, वो तलाक के बदले उससे ले ले। लेकिन एक सूरत बयान की गई है, वो है खुला की सूरत। वो खुला की सूरत ये है कि अगर उन दोनों के दरमियान इख्तिलाफ़ पैदा हो गया और ख़ास तौर से बीवी को शौहर पसंद नहीं है, एक सूरत ये हो सकती है, या कोई और वजह भी हो सकती है। यानी बीवी की तरफ से इस बात की पहल हो कि उसको लगे कि उसका उस शौहर के साथ गुज़ारा नहीं हो सकता है और शौहर जो है वो किसी गलती पर भी ना हो। तो इस सूरत में इस बात की इजाज़त दी गई है कि बीवी जो पैसा उसको शौहर ने दिया है, यानी मेहर जो दिया है, उसमें से कुछ दे करके अपने आप को छुड़ा ले, यानी वो अपने आप को आज़ाद करा ले। उसी को अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इल्ला अन यख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूद अल्लाह, मगर ये कि वो दोनों इस बात का अंदेशा करें कि वो अल्लाह के हुदूद को कायम नहीं कर पाएँगे। तो अगर उनको ये इरादा उनको अगर ये अंदेशा हो कि वो अल्लाह के हुकूक और हुदूद को कायम नहीं कर पाएँगे, तो उस बात में कोई गुनाह नहीं है, यानी उस माल में कोई गुनाह नहीं है जिसको देकर औरत अपनी जान छुड़ा ले। तो ये हो गया खुला। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने ये हुकूक जो हैं, ये तुमको दिए हैं, ये इसी को अल्लाह ताला ने फरमाया तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह ताला की बनाई हुई हुदूद हैं। तो इसके अंदर इससे तजावुज़ ना करो। यानी जो हुकूक दिए गए हैं एक-दूसरे को, उन हुकूक को मुकम्मल अदा करो, उनकी हक़ तलफ़ी ना करो। अब इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये 2 तलाक के बाद भी अगर कोई शख़्स तलाक दे दे, फ़इन तल्लक़हा, और अगर उस शौहर ने बीवी को तलाक दे दिया, तो अब फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरह, तो इसके बाद वो औरत उस शौहर के लिए हलाल नहीं रहती है। यानी ना तो वो रुजू कर सकता है और ना वो निकाह करके दोबारा से उसको अपने साथ रख सकता है। उसके साथ रहने की सूरत कब पेश आएगी? वो सूरत पेश आएगी तब जब अल्लाह फरमाते हैं कि हत्ता तनकीहा ज़ौजन गैरह, यहाँ तक कि वो औरत खुद, तनकीहा माने वो औरत खुद निकाह कर ले।
تو निकाह की जो सूरत बयान की गई है वो ये कि औरत खुद अपनी पसंद से कहीं निकाह कर ली और इस शौहर के अलावा किसी शौहर से, और उस शौहर ने यानी उसके साथ रहने के बाद उस शौहर ने इस औरत को तलाक दे दिया। तो अब इसके बाद ये औरत अपने पहले शौहर के साथ रहना चाहे तो अब कोई हर्ज की बात नहीं है। उसी को बयान किया गया है कि फ़इन तल्लक़हा फ़ला जुनाह अलैहिमा अन यतराजआ इन ज़न्ना अन युक़ीमा हुदूद अल्लाह, कि अगर उस दूसरे शौहर ने भी तलाक दे दिया तो इसके बाद अगर ये दोनों मियाँ बीवी ये चाहते हैं कि एक दूसरे के पास लौट आएँ, तो इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है, बशर्ते कि इन दोनों को ये गुमान हो, ये यकीन करीब-करीब यकीन हो कि ये दोनों अल्लाह के बनाए हुए हुदूद को कायम करेंगे। यानी जिस तरह से पहले उनको उनके साथ ये हुआ था कि वो अल्लाह के बनाए हुए हुदूद को नहीं मान पा रहे थे, अल्लाह के बनाए हुए हुकूक को अदा नहीं कर पा रहे थे, और जिसकी सूरत में उनका तलाक हो गया था। अब अगर उनको ये लगता है कि हमने अपने पिछले तजुर्बे से सबक हासिल कर लिया है और अब हम दोबारा से उन गलतियों को नहीं दोहराएँगे और साथ-साथ खुशी से रहेंगे, तो दोबारा दोनों को आने की इजाज़त है। और अल्लाह ताला ने आगे फरमाया कि अगर कोई शौहर किसी अपनी बीवी से सिर्फ़ इसलिए रुजू करता है कि उसको तकलीफ़ पहुँचाए और उसको उसके ऊपर ज़्यादती करे, तो ये जो है ये उस औरत पे ज़ुल्म करने के साथ-साथ वो अपने आप के साथ भी ज़ुल्म कर रहा है। क्योंकि ये तरीक़ा जो है वो अल्लाह ताला ने मना फ़रमाया है और इसके नतीजे में अल्लाह ताला उस शख़्स को अज़ाब देंगे, और किसी का अपने ऊपर अज़ाब को इनवाइट करना अपने साथ ज़ुल्म करना ही है। और ये तरीक़ा जो था वो ज़ालिम शौहरों का तरीक़ा था। अरब में जो ज़ालिम लोग थे वो अपनी बीवियों को पहले तलाक देते थे, और जब उनकी बीवियाँ अपनी इद्दत को ख़त्म करने के करीब पहुँचती थी तो वो दोबारा से रुजू कर लेते थे, और रुजू करने के बाद फिर तलाक देते थे। फिर इद्दत जब करीब होती थी तो दोबारा से रुजू कर लेते थे। तो इस तरह से औरतों को वो परेशान किया करते थे। यही यही 4 हुक्म जो हैं वो उनको बयान किया गया है। यानी पहले तलाक का बयान हुआ है, उसका हुक्म जो तलाक का सही तरीका है, फिर खुला का बयान हुआ है, और फिर जो है वो तीसरी तलाक का बयान हुआ है, और चौथा औरतों को तलाक के ज़रिए परेशान करने से मना किया गया है। अत-तलाक़ु मर्रतान, तलाक 2 बार है, यानी तलाक का सही तरीका ये है कि उसको 2 बार में दिया जाए। फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान, और अगर तलाक देने के बाद उस शौहर को ये लगता है कि सुलह से काम चल सकता है, मैं सही तरीके से रह सकता हूँ, गलती का उसको एहसास हो जाए, तो फ़इम्साकुम बिमारूफ़, तो रोक लेना है कायदे के मुताबिक, यानी नीयत सही हो और जो तरीका बताया गया है उस तरीके से रोक लिया जाए, रुजू कर लिया जाए। औ तसरीहुम बिइहसान, और अगर रुजू का इरादा ना हो, दोबारा से निकाह को कायम रखने का इरादा ना हो, तो तसरीहुम बिइहसान या खुश उसलूबी के साथ छोड़ देना है। यानी 1 तलाक देकर भी आप छोड़ सकते हैं, 2 तलाक देकर भी छोड़ सकते हैं। तो अगर आप खुश उसलूबी के साथ उसको छोड़ देंगे, तो वो औरत आपके निकाह से खुद ब खुद निकल जाएगी, इद्दत के पूरे हो जाने के बाद। इहसान का मतलब ये है कि इसके अंदर ज़ुल्म और ज़्यादती का इरादा नहीं होना चाहिए, बदले का यानी किसी भी तरह का गलत इरादा नहीं होना चाहिए, ये इहसान है। और इसी के साथ-साथ आगे अल्लाह ताला ने आयतों में फरमाया है कि जब आप तलाक दे दें तो उस वक़्त बीवी को कुछ देना चाहिए, कुछ गिफ्ट भी देना चाहिए। ये अच्छा तरीका है माना गया, क्योंकि आपने उस औरत के साथ एक अच्छा खासा वक़्त गुज़ारा है, जो अच्छे से आपने गुज़ारा है। तो इस वक़्त जब आप दोनों जुदा हो रहे हैं, उस वक़्त किसी तरह का बुग़्ज़ दिल में नहीं होना चाहिए, कीना, हसद, इस तरह की चीज़ें का नहीं होना चाहिए। उसको अच्छे तरीके से ख़त्म करना चाहिए इस मामले को। अब इसके बाद अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि शौहरों के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपनी बीवियों से जो कुछ उन्होंने दिया है उसको वापस लें। वला यहिल्लु लकुम अन तअखुज़ू, और तुम मर्दों के लिए जायज़ नहीं है, हलाल नहीं है, अन तअखुज़ू कि तुम लो, मिम्मा आतैतुमुहुन्ना शैअन,
ان چیزوں میں سے کچھ جو تم نے ان کو دی ہیں، مما ان چیزوں میں سے، شیئن کچھ، آتیتموہن جو تم نے ان کو دی ہیں، الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، ایک صورت جو ہے وہ استثناء ہے، ایک صورت کو الگ کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، مگر یہ کہ وہ دونوں اندیشہ کریں کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ پائیں گے۔ اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ پائیں گے مطلب یعنی ان کو یہ لگے کہ ہم دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے، اس نکاح میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ اگر ہم اس نکاح میں رہیں گے تو ہم ایک دوسرے کی حق تلفی میں مبتلا ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے سے ہم کوتاہی کریں گے، تو اس صورت میں الگ ہو جانا بہتر ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، فَإِنْ خِفْتُمْ تو اگر تم اندیشہ کرو، اللہ یقیمہ حدود اللہ کی وہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہیں کریں گے، فلا جناح علیہما تو ان دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بھی اس مال میں جس کو عورت دے کر کے اپنے آپ کو چھڑا لے، افتدت اپنے آپ کو چھڑا لے، بھی اس مال کو دے کر کے، یعنی اگر عورت کو مرد پسند نہ ہو اور عورت کو یہ لگتا ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں گی تو میں اس کے حقوق کو ادا نہیں کر پاؤں گی، اور مرد کو بھی یہی لگنے لگے کہ اس کے ساتھ رہنے سے حقوق کی حق تلفی ہو جائے گی، حقوق ادائیگی مکمل طریقے سے نہیں ہو سکے گی، ہم ایک دوسرے پر ظلم کریں گے، تو اس صورت میں کہ جب شروعات عورت کی طرف سے ہو اور مرد کی کوئی غلطی حقیقت میں نہ ہو، تو اس صورت میں خلا کی اجازت ہے، یعنی عورت کچھ مال دے کر کے اپنے آپ کو چھڑا سکتی ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کے حدود ہیں، ان کی خلاف ورزی، ان سے تجاوز نہ کرو، ومن یتعد حدود اللہ، اور جو شخص اللہ کے حدود سے تجاوز کرتا ہے، آگے نکلتا ہے، فاولئک هم الظالمون تو وہی لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا گیا کہ فَإِن طَلَّقَهَا، تو اگر اس مرد نے اس کو طلاق دیا، یعنی دو طلاق تو دو ہی مرتبہ ہے صحیح طریقہ، لیکن اس کے بعد بھی اگر اس نے اس کو طلاق دے دیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجٍ غَيْرَهُ، تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہتی ہے، من بعد اس کے بعد، حتی تنکیح زوجن غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت اس کے علاوہ ایک شوہر سے نکاح کر لے۔ اب یہاں پر جو نکاح ہے اس کی نسبت عورت کی طرف کی گئی ہے، یعنی وہ عورت اس مرد کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح کر لے۔ اب یہاں پہ جو آج کل موجودہ جو حلالہ کی جو صورت ہے اس کے اندر مرد خود انٹرفیئر کر رہا ہوتا ہے، نکاح کروا رہا ہوتا ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں دی گئی ہے۔ یہاں پر ایک جو طریقہ بیان کیا گیا ہے اس میں ایک نارمل طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر عورت خود نکاح کر لے اپنی پسندیدگی سے، کسی کا کوئی انٹرفیرنس نہ ہو، اور اس کے بعد وہ شوہر جس کے ساتھ اس نے دوبارہ نکاح کیا تھا وہ شوہر اس کو طلاق دے دے، اب طلاق دینے کے بعد اگر یہ دونوں واپس آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، حتیٰ تنکیح زوج غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت اس کے علاوہ کسی شوہر سے نکاح کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو پھر اگر اس شوہر نے اس کو طلاق دے دیا تو فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، ان یتراجعا، کہ وہ ایک دوسرے کے پاس واپس آ جائیں۔ تراجع، رجع یرجع مانے ہوتا ہے واپس آنا، اور رج تراجع مانے ایک دوسرے کے پاس واپس آنا۔ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر یہ دونوں گمان کریں کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم کریں گے، یعنی پہلی جن غلطیوں کی وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے سے جدائیگی اختیار کی تھی، اب ان غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے، تجربے سے سبق حاصل کریں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے جس کو اللہ ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے جو
علم रखते हैं, जो समझ रखते हैं। तो यहाँ पर 3 तलाक का बयान हो गया और खुला का भी बयान हो गया। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तलाक देने के बाद किसी से रुजू करना उसी वक़्त सही है जबकि नीयत और दुरुस्त हो, जबकि इस्लाह और सही नीयत हो। अगर कोई शख्स सिर्फ़ इसलिए रुजू करता है कि वो औरत को परेशान कर सके, तकलीफ़ दे सके, तो ऐसा करना जायज़ नहीं है। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़बलग़न अजलहुन्ना फ़अमसिकुहुन्ना बिमारूफ़िन औ सर्रिहुहुन्ना बिमारूफ़। और जब तुम औरतों को तलाक दे दो, फ़बलग़न अजलहुन्ना, और फिर वो अपनी इद्दत को पहुँच जाएँ, फ़अमसिकुहुन्ना बिमारूफ़, तो उनको कायदे के मुताबिक रोक लो। यानी अगर तुम्हें सुलह का इरादा है तुम्हारे अंदर और तुम चाहते हो कि खुशी के साथ उनके साथ रहो, तो फिर तुम उनको रुजू करके अपने पास रोक लो। औ सर्रिहुहुन्ना बिमारूफ, या उनको छोड़ दो कायदे के मुताबिक, यानी उनको सही तरीके से उनको छोड़ दो, उनके साथ कोई जुल्म ज्यादती का इरादा मत करो। वला तुमसिकुहुन्ना ज़िरारन लितअतदू, और उनको इसलिए मत रोको ताकि उनके ऊपर तुम जुल्म करो, तकलीफ पहुंचाने के लिए। वला तुमसिकुहुन्ना, और उनको मत रोको ज़िरारन, तकलीफ पहुंचाने के लिए, लितअतदू, ताकि तुम उन पर जुल्म करो। यानी रुजू करना सिर्फ उस सूरत में ही जायज़ है जबकि आपका इरादा सही हो, आप सही में चाहते हो कि खुशी के साथ उस औरत के साथ दोबारा रहना चाहते हो। और अगर आपके अंदर इरादा जो है वो सही नहीं है और आप उस पर ज़ुल्म करना चाहते हैं, तो इस बात की इजाज़त नहीं दी गई है। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा करे, वमन यफ़अल ज़ालिका, और जो शख्स ऐसा करेगा, फ़क़द ज़लम नफ़्सह, तो उसने अपने आप पर ज़ुल्म किया। यानी उसने दुनिया में तो उस औरत के साथ ज़ुल्म का मामला किया, लेकिन आखिरत में इस चीज़ का उस आदमी को बदला मिलेगा, और वो बदला अज़ाब की सूरत में होगा। और अपने ऊपर अज़ाब को बुलाना अपने साथ ज़ुल्म का मामला ही करना है। वला तत्तखिज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुआ, और अल्लाह ताला की आयतों का मज़ाक मत बनाओ। यानी अल्लाह ने अगर तुमको औरतों के साथ कुछ ज़्यादा हुकूक दे दिए हैं, तो उन हुकूक के नतीजे में ज़ुल्म ज़्यादती करते हुए मत फिरो। तकब्बुर में मत आ जाओ, और औरतों के साथ ज़ुल्म ज़्यादती का मामला मत करो। उसी को कहा गया है, वला तत्तखिज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुआ, अल्लाह की आयतों का मज़ाक बनाकर मत रखो। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और अपने ऊपर अल्लाह की नेमतों को याद करो कि अल्लाह ने तुमको नेमत दी है, अल्लाह ने तुमको दर्जा दिया है, कुछ ज़्यादा हुकूक दिए हैं, तो इन चीज़ों का शुक्रिया अदा करो, तकब्बुर मत करो, बल्कि तवाज़ु इख्तियार करो। वमा अनज़ला अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमति यइज़ुकुम बिह, और उस किताब और हिकमत को याद करो जो अल्लाह ने तुम पर नाज़िल की है, जिसके ज़रिए अल्लाह तुमको नसीहत देता है। यानी इन तमाम चीज़ों को याद करो और इनसे सबक लो, ताकि तुम किसी तरह के ज़ुल्म में मत पड़ो। वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह से डरते रहो, क्योंकि ये मामला जो है वो फ़रीक़ैन के यानी शौहर और बीवी के दरमियान जो मामला होता है, ये बहुत ही नाज़ुक मामला है। इसमें कहीं पर भी ज़्यादती हो सकती है। ख़ास तौर से जो मर्द हैं, चूँकि वो ताकतवर होते हैं, वो थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में होते हैं, तो इनसे ज़्यादती बहुत हो सकती है, काफ़ी हद तक इनसे ज़्यादती हो सकती है। इसलिए बार-बार कहा जा रहा है कि इन चीज़ों से बचना चाहिए। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो, यानी एक दूसरों की हक तलफ़ी मत करो। वअलमू अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, और जान लो कि अल्लाह ताला हर चीज़ को अच्छी तरह जानता है। यानी अगर तुम्हारे दिल के अंदर कोई गलत नीयत होगी और उस गलत नीयत के साथ तुम अपनी बीवियों को रोकोगे, सताओगे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बच जाओगे। अल्लाह ताला दिलों की बात को भी जानता है, घरों के अंदर जो बातें होती हैं, उन तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला जानते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से बचो और अल्लाह ताला के हुकूक को अदा करते रहो। तो इस तरह यहाँ पर अ, आज का जो सबक है वो पूरा होता है।
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.